الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اسم ظرف کا مطلب ہوتا ہے کام کہاں پہ ہو گیا اور کس جگہ پہ ہو گیا، تو ہم پڑھتے ہیں اس میں. تو ہم نے کہا تھا کبھی یہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے اور کبھی مفعل کے وزن پہ آتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ اگر مضارع کے عین کلمے پہ آئے گا ضمہ، ٹھیک ہے، یا فتحہ، یعنی کہ مضارع یفعل ہو جائے گا یا یفعل ہو جائے گا، تو اس موقع پہ ہم بولتے ہیں مفعل کے وزن پہ آتا ہے اسم ظرف. لیکن اگر جو مضارع ہے وہ مف وہ یفعل کے وزن پہ آتا ہے، وہ یفعل کے وزن پہ آتا ہے، تو اس موقع پہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے اس کو کیا، اسم ظرف. یہ ہم کل بول رہے تھے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کل ہی. تو اس کے بعد ہم یہ قاعدہ پڑھ رہے تھے کیسے بنانا ہوتا ہے اس کو. تو یہ ہم نے پڑھا تھا یہاں سے یہاں تک. ہم نے کہا تھا کہ صرفی ماضی کے مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے سے علامت مضارع دور کر کے علامت مضارع فار ایگزامپل یفعل لکھا ہے، ہم لکھیں گے سجدہ یس جودو. کیا لکھیں گے؟ سجدہ یس جودو. پہلے کیا بول رہا ہے؟ علامت مضارع کرنی ہے دور کر دی ہم نے دور. میم مفتوح شروع میں بڑھا دو، میم مفتوح یعنی کہ میم ود زبر، میم ود زبر پڑھانی ہے آگے سے، پڑھایا ہم نے اس کو میم ود زبر. ٹھیک ہے. عین کلمہ مضموم ہو تو مفتوح کر دو. اگر مضارع کے عین کلمہ پہ مضموم ہوگا، اس پہ پیش ہوگی، تو اس کو مفتوح کرنا ہے، اس پہ زبر ڈال دینی ہے. یعنی کہ مس جدن لکھا ہے نا، اگر اس پہ پیش ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اگر عین کلمہ مفتوح ہوگا تو، اگر عین کلمہ مضموم ہوگا تو مفتوح کر دو، ہے نا. یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ کو سمجھا رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے؟ مطلب مفعل کا وزن کب لانا ہے. اور یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے، ہاں یہ آپ کو چھوڑیے اس کو. مسجد یہاں پہ آ جاتا ہے، کیوں آ جاتا ہے؟ ایکسیپشنل کیس ہے. میں بول رہا ہوں اس کو کیا ہو گیا مسئلہ. اب چھوڑیے اس مثال کو، میں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ آئین کلمہ مضموم اگر ہوگا نا، اگر یف اولو کے وزن پہ آتا ہے تو مفتوح کر دو. تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم بولیں گے مفعل یہاں سے، ہے نا. ورنہ اپنی حالت پہ رہنے دو، آخر میں تنوین لگاؤ. جیسے ینصر سے منصر، دیکھیے ینصرو یہ کاٹ دیجیے اس کو، لگے میم. اب یہاں پہ منصور نہیں آ جائے گا، منصر آ جائے گا، کیونکہ اگر یہاں سے مضارع کے عین کلمہ پہ کیا آ رہا ہے؟ اگر مضارع کے عین کلمہ پہ یہاں پہ آ رہا ہے کیا؟ پیش. تو یہاں سے اس میں اسم ظرف جب بن جائے گا اس پہ آ جائے گا عین کلمہ کے اوپر زبر. ان شارٹ پیش اگر ہوگی تو زبر آ جاتی ہے یہاں سے، زبر اگر ہوگی تو زبر آ جاتی ہے یہاں سے. کہاں سے؟ مضارع اس میں نا، اسم ظرف میں. اگر یہاں سے ہوگی زیر تو یہاں سے بھی کیا آ جاتی ہے؟ زیر. کہاں پہ؟ اسم ظرف کے اندر، اسم ظرف کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد یضرب سے مضرب بن جائے گا. ضرب یضرب، مضرب کیا ہو گیا؟ مارنے کی جگہ ہے، مارنے کا وقت. دیکھیے اب کیونکہ ضرب یضرب آ گیا تو مضرب آ جائے گا، جو کہ مفعول کے وزن پہ. کیونکہ اگر مضارع کے عین کلمہ مکسور آ رہا ہے، اس پہ کسرہ آ رہی ہے، تو اس موقع پہ اس کا جو اسم ظرف بن جائے گا، اس کا عین کلمہ بھی کیا آ جائے گا؟ اس کا عین کلمہ بھی آ جائے گا مکسور. اس کے بعد یسمع سے مسمعون، سننے کی جگہ ہے، سننے کا وقت. سمع یسمع مسمعون، کیونکہ اب یہاں پہ یا کاٹ دیجئے، اب یہاں میم لا دیجئے، تو مسمعون سننے کی جگہ یا سننے کا وقت. کیونکہ یہاں پہ مضارع کے عین کلمہ پہ زبر آ رہی ہے، تو جو اس کا اسم ظرف بن جائے گا وہاں پر بھی اس کے عین کلمہ پہ زبر ہی آ جائے گی. یہ بہت آسان تھا، بہت ہی زیادہ آسان. گردان اس طرح پر ہوگی، پوری ہوگی، شاید یہاں لکھا ہوگا. مفعل کرنے کی جگہ کرنے کا وقت. ارے ہم جگہ پڑھا تھے، ہم کیا واپس پڑھ رہے؟ ہم کیا پڑھا تھے، ہے نا. کل نہیں پڑھا تھا، یہاں سے پڑھا تھا میں. وہی نا، او پتہ ہی نا یہ چیز مفعل یا مفعلان یا مفاعل کے وزن پہ آتا ہے. ویسے ہم نے یہ سارے ایگزامپلس کل میں نے آپ کو زبانی کر کے دی تھی. اسم ظرف بنانے کے قاعدے سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ اسم ظرف مضارع مفتوح العین، اگر مضارع ہوگا مفتوح العین، فتحہ ہوگی عین کلمہ کے اوپر. اور مضارع مضموم العین، یعنی کہ اگر مضارع کے
आइन कलमा के ऊपर क्या होगा? फतहा होगी। मुदारे मफ सॉरी, मजमूम आइन या मफतूह आइन, वही से बफतहा आइन आता है। से क्या आता है? उससे आता है फतहा आइन कलमा पे। और अगर मुजारे मकसूर आइन होता है, यानी कि अगर मुजारे के आइन कलमा पे कसरा होती है, यफ़इलु के वज़न पे आता है, से बकसरा आइन आता है, तो वहाँ पे क्या आता है? मफ़इलुन के वज़न पे। इन शॉर्ट, देखिए ध्यान से देखिए, अगर फ़अल यफ़अलु आ जाएगा तो मफ़अल आ जाएगा। अगर फ़अल यफ़उलु आ जाएगा तब भी मफ़अल आ जाएगा। लेकिन अगर फ़अल यफ़इलु आ जाएगा तो मफ़इलुन आ जाएगा, ना कि अलुन। बस, क्योंकि दो वज़न आते हैं सिर्फ, ये तो मफ़इल, ये तो मफ़अल। मस्जिद, मकतब, रखिए आप याद रखिए, मस्जिद मफ़इल के वज़न पे है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे हो गया है सजदा यसजुदु, यहाँ पेश आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा मस्जदुन, आता है ना मफ़अल के वज़न पे। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। वैसे ही वहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। शरका यशरिकु, नहीं वहाँ पे एक्सेप्शनल केस नहीं, मशरिकुन ठीक आ रहा है। गरबा यगरुबु, शायद गरबा यगरुबु, हाँ, गरबा यगरुबु आ जाता है। अब है ना पेश, अब क्या आता है? मगरबुन, लेकिन मगरिब आ जाता है, हाँ। मफ़इल के वजन पे एक्सेप्शनल केस है। मस्जिद और मगरिब आर एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पे अगरचे मुदारे के आइन कलमा पे जेर आ रही है, इसके बावजूद उसके ज़र्फ बनाने के टाइम पे हम वहाँ डालते हैं अगरचे मुतारे के आइन कलमा पे सजदा यसजुदु और गरबा या गुरूब के केस में पेश आ जाती है, लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं? मगरिब मस्जिद, बिकॉज ये एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि अरबी ज़बान में होते हैं, सब चीज़ें एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन बाद मुदारे मजमूम आइन से खिलाफ कियास, वही बोले, देखिए बाद मुदारे मजमूम आइन जो होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? दम आइन कलमा के ऊपर, खिलाफ कियास। खिलाफ कियास बोलते हैं अक्ल लगाने को, एनालॉजी को, एनालॉजी या अक्ल लगाने को, एग्जाम्पल देने को अक्ल से, खिलाफ कियास हो जाता है। मकसूल आइन आ जाता है वहाँ पे। अगर अगरचे मुदारे के आइन कलमा पे क्या आ रहा है? पेश, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ज़बर। लेकिन मस्जिदुन मफ़इल के वजन पे आता है, क्योंकि ये खिलाफ कियास है और ये एक्सेप्शनल केस है, जो कि जैसा होता है वैसे ही याद करना पड़ता है, क्योंकि अरब ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलेंगे सजदा यसजुदु मस्जिदुन, सजदा करने का वक्त या सजदा करने की जगह। शरका यशरिकु मश शरका यशरिकु मशरिकुन, रहती है शरक हो जाता है, मुझे पूरा पता नहीं है, देखिए मुझे भी याद नहीं है अच्छे से क्या हो जाता है। मैं देख सकता हूँ ना इससे, उस ऐप से क्या आता है? शरका यशरक आता है क्या? सर्फ कॉन्जुगेटर। ये भूल जाता है इंसान को, ये पढ़ने पढ़ने से इंसान सीख जाता है। शरका, क्या हो रहा है? युरजी अल मालूमात तदरजه। श शरका, या अल्लाह। अच्छा यशरक, लेकिन यश, ला, क्या दिखाता ही नहीं है आज? ऐप खराब हो गई है शायद। देखिए क्या हो जाता है इसको, याद है शरका यशरुकु, क्या आता है? शरका, क्या आप लिखिए इसको? यश रुकु, क्या आता है? शरका यश रुकु, यानी कि ही राइजेस, यानी कि सन चढ़ता है ना, वही। इशरकत शम्स बोलते हैं, इशरकत शम्स, सनराइज हो गया, ठीक है। सनराइज को क्या बोलते हैं? शरका यशरुकु। तो यहाँ पे अगर यशरुकु आ रहा है, इंसान की अकल बोलती है यहाँ पे मशरकुन आना चाहिए था, मशरकुन, ना कि मशरिकुन। लेकिन यहाँ पे आता है मशरिकुन। क्यों आता है? अरबों ने ऐसे इस्तेमाल किया है। सजदा यसजुदु आता है, अब आता है मसजदुन, मस्जिदुन आता है। क्यों आता है? ये खिलाफ कियास है, अरबों ने ऐसे इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब गरबा या गुरुबु, मगरिबुन आता है। क्यों आता है? अरबों ने ऐसे इस्तेमाल किया है, आफ्ताब गुरूब होने की जगह। सकता यसकुतु आता है, सकता यसकुतु बोल गया गिरना, ठीक है, सकता ऐसे। यसकुतु मतलब क्या होता है? गिर जाना। और मस्कित क्या होता है? गिरने की जगह या गिरने का वक्त।
अच्छा, नबत यनबुत पता है क्या होता है? उगाना। नबातात इनको बोलते हैं पेड़ों जो उग जाते हैं ना। नबत यनबुतु क्या होता है? उगाना। अब देखिए, मन बितुन क्या होता है? मन बितुन उगने की जगह। सकना यस्कुनु क्या होता है? रहना। मस्किनुन क्या होता है? रहने की जगह। तला यतलाउ क्या होता है? तुलू होना। होता है ना आफ्ताब को तुलू खुद। ठीक है। तला यतलाउ का मतलब होता है चढ़ जाना। आफ्ताब तुलू होने की जगह। मत्तलिउन। एक इसने हम लिखा है मफरिकुन। अच्छा, तला यतलुआ। तला यतलु तुलू होना। फरक यफरुकु। ठीक है। फरक यफरुकु हो गया। मतलब फरक मुफरिकुन, फर्क करना, अलग करना ना। फरक यफरुक में देखूंगा फिर भी। फर्क बोलते हैं अलग करने को, बोलते ना। इनके बीच में ये तफरीक हो गया, तफरीक या फिरका। ठीक है। फरक यफरुकु। इसको होता है हाँ, फरक यफरुकु मतलब होता है क्या? टू स्प्लिट, टू डिवाइड, टू सेपरेट। अब मफरिक उनके होते हैं मांग। पता नहीं कि मांग क्या होता है, ये शायद ना उर्दू का लफ्ज़, जो उर्दू करना नहीं आता है। मांग का मतलब शायद कुछ और होता है, जहाँ पे जिस जगह पे अलग हो जाते हैं ना, शायद। मैं देखूंगा मफरिक क्या होता है। मफरिक उनका मतलब आप लिखिए यहाँ पे छोटे में। मफरिक उनका मतलब होता है प्लेस ऑफ सेपरेशन या डिवीजन। क्या होता है? प्लेस ऑफ सेपरेशन या डिवीजन। इसको बोलते हैं मफरिक। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मफरक तरीक, जंक्शन या क्रॉस रोड्स, क्या होता है? फर्क हो जाता है, फर्क। अब देखिए, मनसिक क्या होता है? मनसिक बोलते हैं कुर्बान गाह को, जहाँ पे कुर्बानी करते हैं। अब बोलेंगे कैसे? कुल इन सलाती, आप कह दीजिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी है ना। नुसुक बोलते हैं कुर्बानी को। व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कैसे बन गई ये चीज़? ये बन गया नसका यनसुकु से। नसका यनसुकु, नसका यनसुकु का कुर्बानी करना। नसका यनसुकु, हाँ। देखूंगा फिर भी नसका यनसुकु का जाता है कि नहीं। ये होता है ना सिमा, ये बस इंसान पढ़ता ही याद करने होते हैं, इसमें कोई रूल नहीं होता है। नसका यनसुकु हो गया टू परफॉर्म रिलीजियस राइट्स या टू परफॉर्म स्पेशली सैक्रिफिशियल एक्ट्स ऑफ वर्शिप। क्योंकि ज़्यादा खास ये होता है किसके लिए, किसके साथ? क्या बोलते हैं ना मनासिक हज, क्या बोलते हैं मनासिक हज क्या होता है? वो रिलीजियस वो रिलीजियस राइट्स जो हमें हज में करनी होती है, उम्रा करना होता है, साई करनी होती है, तवाफुल इफादा करना होता है, तवाफुल जो हम पढ़ रहे थे पिछली बार से ही। मसला ये है कि नसका यनसुकु मतलब होता है रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करना, खास तौर पे सैक्रिफिशियल राइट्स। उनका अल्लाह फरमाता है कुरान में, कुल इन सलाती व नुसुकी, आप फरमाइए जो मेरी नमाज है और जो मेरी कुर्बानी है, वहाँ कुर्बानी मुराद है उस नसक यंसुक। मनसिक कुर्बान करनी, कुर्बान का। अब देखिए, मजजिर क्या होता है? मजजिर क्या होता है? कैसे मजबाह शितर है, ये कैसा उर्दू है? एक मिनट देखते क्या होता है। मजजिर, जैसा बोलते हैं शायद इसको, रूट को, हाँ। मजजिर मतलब होता है कटिंग मीट, स्लॉटरिंग। अच्छा हाँ हाँ हाँ, स्लॉटर हाउस। मजबाई शतर क्या होता है? मजबाई शतर मतलब होता है स्लॉटर हाउस। SLAUGHTER हाउस, जहाँ पे इंसान स्लॉटर करता है, जिस जगह पे, उसको बोलते हैं मजजिर। अब यहाँ पे रूट वर्ड क्या है इसका? मैं देखूंगा वो इसका क्या रूट वर्ड आ जाता है। वो जजरा या जुर्र आता है शायद। हाँ, जीम ज़ारा इसका रूट वर्ड है। जजर बोलते हैं काटने को, हाँ, टू कट, टू स्लॉटर। क्या बोलते हैं? टू बच बुचर बोलते हैं ना, बुचर इसको।
फूजिको, कसाई, कसाई बोलते हैं उसको, कसाई। हाँ। अच्छा, जजर ये जीरो क्या होता है? टू कट। और मजजर क्या होता है? जहाँ पे काटते हैं, स्लॉटर हाउस, जहाँ पे खाशश कर रहे होते हैं बेडूम को। अब देखिए, मनहिर क्या हो गया? मनहिर, नथना लिखा है, सोच, नथना, मनखिर। अब देखिए, मनखिर का मतलब क्या होता है ऐसे, क्योंकि इसने कुछ अजीब 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 चीज़ें लिखी है। क्या ऐसे लिखा है? मन, नथना, ये क्या उर्दू है? म- मनखिर का मतलब होता है नॉस्ट्रिल। क्या होता है मतलब? नॉस्ट्रिल। जो इंसान को दो गोल होते हैं आँख के अंदर। क्योंकि असल में यहाँ पे उन्होंने नखरा, क्या है? नखरा। नखरा मतलब हो गया टू नोज। नोज के होता है, इशारा होता है, मानिए वैसी। तो मनखिर का मतलब होता है नॉस्ट्रल, यानी कि नोज जहाँ से आ जाती है उसकी जगह। मनखिर, नॉस्ट्रल्स को क्या बोलते हैं? मनखिर। और मरफिक किसको बोलते हैं? कोहनी रखने की जगह, कोहनी बोलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ना कुरान में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फगसिलू वुजूहकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इला सलाति, जब तुम खड़ा हो जाओ नमाज के लिए, फगसिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को दो। फगसिलू, तुम दो अपने चेहरों को। वो अयदियकुम इलल मराफिक, तो अपने हाथों को दो मराफिक तक, कोहनियों तक। इसके बोलते हैं एल्बो तक। हाँ, मिरफक हो गया एल्बो। मिरफक किसको बोलते हैं? एल्बो, मिरफक। रफक यरफुक हुआ था शायद इसको। और मरफिक, मफइल के वजन पे, कोहनी रखने की जगह, इसको बोलते हैं मरफिक, कोहनी रखने की जगह, मरफिक। अच्छा, उस पर क्या आ गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुम इला सलाति फगसिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम, तुम मसा करो अपने सरों का। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, तुम दो अपने पैरों को कअबैन, एंकल्स तक। कअब बोलते हैं एंकल को। हाँ, मरफिक, मिरफक बोलते हैं एल्बो को, मिरफक। या मरफक बोलते हैं एल्बो को। तो ऐसे ही यहाँ बन जाता है, रफका से रूट वर्ड है, रफका यरफुकु, मरफिक। ऐसा होता है इसमें, ठीक है इंशाल्लाह। आपको समझ आ गया होगा। या आपको पता है रफ़ाक़ा के बहुत सारे मतलब हो जाते हैं। रफ़ाक़ा का एक मतलब हो जाता है टू बी जेंटल, टू बी काइंड, है ना? हदीस में आ गया इन अल्लाह रफ़ीक़ुन, अल्लाह ताला काइंड काइंड है, वो जेंटल है, ठीक है, वो इजी गोइंग है। युहिब्बुर रिफ़्क़, वो पसंद करता है इजी गोइंगनेस, पसंद करता है वो नरमी, वो पसंद करता है जब बंदा रहता है काइंड, जेंटल रहता है वो। वयुअती अलल अलल रिफ़्क़ मा ला युअता अलल उन्फ़, वो अदा करता है बंदे को नरमी में, जब वो जेंटल होता है, काइंड होता है, वो चीज़ें जो उसे नहीं मिल जाती है जब वो होता है गुस्से के अंदर। नरम इंसान को बहुत दुनिया में फ़ायदा जाता है ना, उसको, उसके सामने सारे लोग बैठ पाते हैं, कोई भागता नहीं है उससे। ऐसा होता है। वरना कोई इंसान गुस्सा करता है, सब लोग दूर जाते हैं उससे, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहा होता है मुंह से, गुस्से से, है ना? जो जेंटल इंसान होता है, काइंड इंसान होता है, वो पॉजिटिविटी फैलाता है ना? हर एक इंसान की होती है अपनी अपनी एनर्जी होती है। जैसा इंसान होता है ना, वो वैसे ही फील कराता है लोगों को। मानिए मैं खुद डिप्रेस्ड हूँ, क्या हूँ मैं? डिप्रेस। जब मैं बात करूंगा ना, मेरी बात से डिप्रेशन, डिप्रेस्ड वॉइस निकलेगी, डिप्रेस वाइब आ जाएगी मेरे सामने से। जो मेरे सामने होगा वो भी डिप्रेस हो जाएगा। मैं खुश हूँ, क्या हूँ? मैं हंस रहा हूँ, मेरे से ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस में टोनालिटी में आ जाती है क्या? वो खुशी। फिर ऐसी एनर्जी में करता हूँ क्या? रेडिएट। और वो फील कर पाते बाकी सारे, ऐसा होता है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट, इंसान होना चाहिए नरम, क्योंकि अल्लाह ताला को नरमी पसंद है। और नरमी में हमेशा खैर होता है, जिसमें आ गया कि अब सुनिए नरमी के बारे में कितनी हदीस में आ गई, कितनी सारी हदीसें आ गई। वमा तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। एक बंदा नहीं रहता है तवाज़ु करता है, इख्तियार, वो नहीं वो अपने आप को छोटा समझता है, तवाज़ु करता है, इख्तियार, इल्ला रफ़अहुल्लाह, उसे इससे अल्लाह ताला बुलंदी अता करते हैं। हालांकि एक तकबर करने वाला क्यों तकबर करता है, किस लिए? ताकि वो अपना दिखाए दबदबा, मुझे कुछ आता है करना, मैं भी कुछ हूँ। हालांकि उसे वो गिर जाता है लोगों की नज़रों में, अल्लाह ताला की नज़रों में, तकबर से। जब वो मुतवाज़े होता है, जो तवाज़ु करता है, उसको उल्टा अल्लाह ताला रिफत अता करता है, बुलंदी अता करता है। अल्लाह ताला बंदों के सामने भी और अल्लाह ताला के सामने भी, दोनों चीज़ें। या हदीस में क्या आ गया है? हदीस में आ गया कि हम्म,
मैं युहर्रिमुर रिफ्क युहर्रिमुल खैर, कई एक जगह भी आ गया मैं युहर्रिमुर रिफ्क युहर्रिमुल खैर, युहर्रिमुल खैर कुल्लहु, ऐसा कुछ आ गया। जो नरमी से महरूम किया गया ना, वो सारे खैर से महरूम किया गया, उसे कोई खैर नहीं मिल सकता है। तो ये इतनी ज़्यादा अहमियत नरमी की इस्लाम में है। और अल्लाह ताला को नरमी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और दीन इस्लाम में शिद्दत करना, ये बहुत नापसंदीदा चीज़ है। हदीस में आ गया अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। ऐसी अल्फाज है कुछ, वलन युशाद अहदुकुम दीनन इल्ला गलबहु, ऐसा कुछ है। किसी इंसान ने नहीं किया दीन में सख्ती ज़्यादा की, जितनी सख्ती इस्लाम नहीं कहता है। वो वो तफरी इफरात कर रहा है, क्या कर रहा है, इफरात, ज्यादती कर रहा है, गुलू कर रहा है वो दीन के अंदर। वो भी हराम है, ये भी हराम है, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हदीस में आ गया कि इंसान को करेंगे इस्लामिक टीचिंग्स और वेल्म, ठीक है, वो हो जाएगा डिप्रेस हो जाएगा वो। जैसे होता है बहुत सारों को डिप्रेशन हो जाता है रिलीजन ज़्यादा फॉलो करने से। वो हो जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, हमें ठीक करिए। ऐसा होता है बहुत सारों को, मैंने देखी है ऐसी मिसालें बहुत सारी। मतलब वो इतने होते हैं परेशान, अगर हमने वज़ू किया, टूट गया वज़ू, हाथ धोला, फिर से धोना है, वज़ू करना है 20 बार, गुस्ल करना है 40 बार। क्योंकि शैतान आता है इंसान को यहाँ से ही, तलबीस इबलीस अगर पढ़ेंगे ना, तलबीस इबलीस जो है, जो डेविल्स डिसेप्शन बुक एक आ जाती है, इस पे जो इब्न जौज़ी की किताब है, शैतान के कैसे हथकंडे हो, कैसे फंसाता है। शैतान करते हैं हर हर एक इंसान के लिए अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल, जो जैसा फंस जाता है जैसा इंसान। तालिब इल्म के लिए अलग तरीका, आलिम के लिए अलग तरीका, एक ज़्यादा इबादत करने वाले के लिए अलग तरीका, ज़्यादा सोचने वाले के लिए अलग तरीका, ज़्यादा इबादत करने वाले के लिए अलग तरीका, शरीफ के लिए अलग तरीका। तो ये सोचना चाहिए इंसान को, दीन में सख्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो दुनिया की बुनियादी चीज़ें होंगी वो भी इंसान बोलेगा मसला नहीं है, इंसान करे नॉन मैरम के साथ हैंड शेक बोल रहा है, मसला नहीं, दीन में सख्ती नहीं करनी है, इतना मसला नहीं है, ये अपनी बहनें होती है, ठीक है, ये नहीं करना है। मसला है कि जो नहीं आ गया वो खुद ब खुद इंट्रोड्यूस करना, वो नहीं करना है। कोई समझता है इससे ये मतलब है। अच्छा, इस्म आला का मतलब क्या होता है? इस्म आला का मतलब होता है नाउन ऑफ, नहीं इसको क्या बोलते हैं इस्म आला को, इंस्ट्रूमेंटल नाउन शायद ये बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल नाउन उसको बोलते हैं। इस्म आला मतलब होता है आले का नाम। आला क्या होता है, जिससे हम कोई काम करते हैं ना, जैसे अगर हमें खाना बनाना है, खाना नहीं, जैसे हमें अगर मुझे प्लस चाहिए होता है किसके लिए, कोई काम मैकेनिकल काम करनी है, उसको बोलते हैं आला। टूल ना, टूल इंस्ट्रूमेंट। इसमें आला होता है टूल का नाम, टूल का नाम। अब यहाँ पे टूल का नाम बन जाता है किससे, फ़िल से, अरबी ज़बान के अंदर। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे। इसम आला का मतलब होता है ये इंस्ट्रूमेंट नाउन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल, नाउन। इसम आला वो इसम है जो उस चीज़ को बताए जो काम करने का जरिया हो। ये बोला है उस चीज़ को जो काम करने का जरिया हो। हम खोलते हैं चाबी से क्या, ताले को, उसको बोलते हैं मिफ्ताह, है ना, जो फतह करती है, जो खोलती है ताले को, ठीक है ना, ऐसे। यानी जिस आवाज़ के ज़रिए से, जिस आवाज़, औजार, जिस टूल के ज़रिए, जिस आले के ज़रिए से काम किया जाए। अब इसके 3 वज़न होते हैं, मिफ अल का वज़न, या मिफ अल तुन का वज़न, या मिफ आल का वज़न। अब देख रहे हैं ये चीज़ें, कभी इसे मिफ अल का वज़न आ जाता है, कभी मिफ आल का वज़न आ जाता है, और कभी मिफ अल तुन का वज़न यहाँ पे आ जाता है। तो जब मिफ अल का वज़न आ जाता है, मिफ अल का वज़न, वो तब आता है जैसे मिक़यत। पता है मिक़यत क्या होता है, सुई, मिक़यत बोलते हैं सुई को। शायद खायाता या खयात बनता है इसका रूट वर्ड। खायाता बोलते हैं इसको, सीने को, ठीक है। नहीं, खाता यखीत, तो हाँ, खाता यखीत उसको बन जाता है, खाता यखीत, क्या हो गया, सीना, ठीक है। अब मिक़यत क्या होता है, खैयात बोलते हैं शायद दर्जी को, हाँ, टेलर बोलते हैं खैयात। अब मिक़यत किसको बोलते हैं, मिक़यत सुई को। मिक़यत क्या होता है, सुई। कुरान में भी आ गया ना मिक़यत के बारे में, वो एक आयत है कुरान की, मैं देखूंगा वो वाली आयत अच्छे से।
مخیط اس کے بارے میں آ گیا ہے نا وہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، نہیں یہ نہیں آ گیا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط آ گیا وہاں پہ. مطلب آپ پانی ایسے آ گیا کہ جو کفار ہے نا، کفار جو مشرکین ہیں وہ نہیں ہو جائیں گے داخل جنت کے اندر، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل نہ ہو جائے ایک اونٹ فی سم الخیاط. خیاط یا مخیط بولتے ہیں سوئی کو، جب تک وہ سوئی کے آنکھ سے، آئی آف نیڈل سے ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا وہ گول جہاں سے بڑھتے داغے اس کو بولتے ہیں آئی آف نیڈل، اس کو بولتے ہیں سم الخیاط. یہاں تک کہ اونٹ نہیں نکلے گا سم الخیاط سے، تب تک نہیں داخل ہو جائیں گے مشرقین جنت. مطلب کیا ہو گیا کہ امپاسبل ہے کہ مشرقین جائیں گے کہاں پہ؟ جنت پہ. شرک کرنے والے جائیں گے جنت پہ، ہے نا وہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ حرام ہے جنت، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو مسئلہ ہے وہاں پہ کیا گیا، فی سم الخیاط، آئی آف نیڈل. تو مخیط کس کو بولتے ہیں؟ سوئی کو. یا حدیث میں بھی آ گیا ہے کچھ، اذا ادخل البحر، مطلب اگر دنیا کے تمام انسان، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے تمام پرانے انسان، انسان جن اور نئے انسان اور جن آئیں گے، جمع ہو جائیں گے ایک جگہ پہ، پھر وہ سارے مانگے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے خزانے میں کوئی فرق نہیں ہو جائے گا. صرف اتنا ہی کہ اگر ہم اٹھائیں گے سوئی، اذا ادخل البحر، اس کو سلیں گے پانی کے اندر، پھر دیکھیں گے کتنا لگا ہے پانی سوئی کے، سوئی کو مدد لگے گا کچھ پانی، تو نہ کے برابر فرق پڑتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں. اگر سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، مانگیں گے کوئی چیز. اچھا اب دیکھیے مفعلتن کے وزن پہ کبھی آ جاتا ہے مفعلتن، جیسے اتنا مفعلن یہ مخیتن کے وزن پہ آ گیا سوئی. مفعلتن جیسے مروحتن کیا ہوتا ہے؟ پنکھا، فین. مروحتن کبھی آتا ہے مفعال کے وزن پہ، جیسے مفتاح کیا ہوتا ہے؟ کنجی. کنجی کیا ہوتا ہے؟ چابی. گردان اس طرح ہوگی یہاں پہ دیکھیے، مفعل، مفعلان ہو گیا دو، ہے نا. اور مفاعل جمع آتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، جیسے مفاتیح، مفاتیح. دیکھیے مفعلتن جو ہے نا، اس کو آ جائے گا تسنیہ، تسنیہ کا ڈیول فارم، وہ آئے گا مفعلتان، اور جمع کیا جائے گا؟ مفاعل. اور جب مفعال ان کے وزن پہ کبھی آ سکتا ہے یہ مفعالان آئے گا یہاں پہ، اور مفاعیل، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آ جائے گا جمع میں اس کو مفاعیل. اب بنانے کا قاعدہ کیا ہے اس کا؟ یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ، کہ ہم پڑھیں گے جلدی سے. کتاب میں کتنا پیج بچ گئے؟ 96 ہم پہنچے ہیں. اب بس کتاب آسان ہے انشاءاللہ. برے علامت مظاہرے کو دور کر کے، علامت مظاہرے کو دور کر دینا ہے پہلی بات، کیونکہ مظاہرے نہیں ہیں آپ. میم مکسور لگا دو، میم وتھ کسرہ لگا دو. فار ایگزامپل ہم لکھیں گے ضرب یضرب، ٹھیک ہے، ضرب یضرب کیا ہو گیا؟ مار رہا. ہم لکھیں گے یہاں پہ یضرب، دیکھیے یضرب. کیا بول رہا ہے رول؟ بول رہا ہے کہ علامت مظاہرے کو دور کر دو، جو علامت المظاہرے وہ دور کر دو، کر دی دور کر کے. میم مکسور لگا دو، میم وتھ کسرہ سامنے سے لگا دو، میم وتھ کسرہ، ناٹ فتحہ، وہ وہاں پہ تھا اس سے پہلے والی کیس میں. عین کلمہ اگر مفتوح نہ ہو، اگر عین کلمہ مفتوح نہ ہو، یہاں پہ دیکھیے آپ، کیا عین کلمہ مفتوح ہے؟ نہیں ہے. یہاں پہ زبر ہے؟ نہیں ہے. تو اس کو مفتوح کر دو، یعنی کہ مضرب، کیونکہ یہ مفتوح نہیں تو کرنا ہے دینا مفتوح اس کو، یعنی کہ بنانا ہے مفتوح یہاں پہ، کیونکہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے نا، وہی مفعل، مضرب کر کے آخری حرف پر تنوین بڑھا دو، مضربن، ٹھیک ہے. جیسے یضرب سے مضرب، پتہ ہے مضرب کس کو بولتے ہیں؟ مضرب، مضرب بولتے ہیں ہیمر کو، نہیں وہ کیا ہے، ترق کو مطرق، مطرق بولتے شاید. مضرب بولے سے مارتے ہوں گے کس چیز سے؟ مضرب. میں دیکھتا ہوں مضرب کیا ہوتا ہے. مضرب، ضرب يضرب، مضرب، مضرب. مضرب بولتے ہیں اسی کو بیٹ کو یا ریکٹ کو یا پیڈل کو. بیٹ ایسے مارتے ہوں گے، بیٹ سے مارتے نا، یا ریکٹ سے مارتے، یا سے مارتے، پیڈل سے مارتے، لکھیے اس کو آپ کے، بیٹ یا ریکٹ، RACKET، یا
पैडल। ठीक है, मिद्रब बोलते हैं इसको। टेनिस रैकेट को बोलते हैं ज़्यादा तौर पे। उसको बोलते हैं मिद्रबु टेनिस। क्या बोलते हैं? मिद्रबु टेनिस, टेनिस रैकेट। मैं जिसे मार दूंगा इन शॉर्ट। अच्छा, अगर इस पे ता बढ़ा दी जाए तो ये मिफ आलतुन के वजन पे आ जाएगा। जैसे मिद्रबुन था ना रैकेट, जैसे मिद्रबातुन आ जाएगा, है ना? तो सिंपल था मिद्रबातुन। बोले अलामत मुजारे को दूर करके मीम मकसूर बढ़ा दो। ठीक है। आइन कलिमा के बाद अलिफ ज्यादा करो, आखिर में तनवीन दे दो। मिज़राब अगर मिफ़आल के वजन पे जमा लाएंगे ना। नहीं 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 नहीं। ये क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल क्या रहा हूँ? अलामत मुजारे को दूर करके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है यद्रिबु। क्या लिखा है? यद्रिबु। यद्रिबु। क्या करने वाले? अलामत मुजारे को करना है दूर, कर दिया दूर। विद लाई आगे से क्या? मीम मकसूर ला दिया, मीम विद कसरा। आइन कलिमा के बाद अलिफ ज्यादा करो, आइन कलिमा के बाद मिज़राब है ना यहाँ पे, ज्यादा कर दो। तनीन आखिर में लगा देनी है तो यदरिबु से मिज़राबुन बन जाएगा। अगर माजी तीन हरफी ना हो तो इस्म आला का सेगा नहीं आएगा। अगर माजी तीन हरफी ना हो, यानी कि माजी जो है वो थ्री लेटर्ड नहीं है, पास्ट टेंस इज नॉट थ्री लेटर्ड, तो उस टाइम पे वहां पे इस्म आला का सेगा नहीं आएगा। ठीक है। अगर वो होगा रुबाई फ़िल, जैसे जहाँ पे फोर लेटर्ड वर्ब होता है, दहरज युदहरज जो आता है कभी कभी, फ़अल युफ़अलिलु, हम देखेंगे दुरूस में, तो आपको वहीं समझ आ जाएगा। मैंने पढ़ाया था वो पिछली बार, वो उसमें ना वो फ्री से वीडियोस में। मसला है कि जब ऐसा होगा तो वहाँ नहीं बन जाता है, सिर्फ थ्री लेटर्ड वर्ब में ही बन जाता है इसम आला। फॉर एग्जाम्पल फतह, दरबा, समिआ, और क्या लिखा है इसमें पे? क्या लिखा है? करद। अच्छा, करद यकरिदु, काटना। करद यकरिदु, ठीक है। से इसम आला की गर्दानें करनी है, हम बनाएंगे इसको, ठीक है। बनाएंगे इसको, देखिए। एक मिनट एक मिनट, 95 था ना पेज नंबर, यहाँ पे क्या है? 90। अच्छा, यहाँ पे इतना ही है, इसने दिया है। बनाएंगे इसको, देखिए। फतह यफ्तह हुआ जाएगा ना। फतह यफ्तह क्या होता है? खोलना। लाइए आगे से क्या? मीम मकसूर। मिफ, यहाँ लाइए अलिफ। मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन क्या बोलते हैं? क्या होता है? चाबी। मिफ्ताहुन बन गया इसी मिफआलुन के वजन पे, मिफ्ताहुन। एक और चीज़ है कि दरबा, दरबा क्या होता है? मारना। दरबा यद्रिबु मिद्राबुन या मिद्रबुन। मिद्राब किसको बोलते हैं? रैकेट को, टेनिस को, पैडल को। समी आई यस्माउ क्या होता है? सुनना। बनाइए इसको। मिसमाउन, मिसमाउन क्या होता है? जो सुनाने की चीज़ होती है। मिसमाउन बोले रेडियो को शायद, हाँ। मिसमाउन क्या होता है? रेडियो। जो ना सुनाता है हमें। समी आई यस्माउ मिसमाउन, मैं देखूंगा फिर भी एक बार। मिस मा ही बोलते कि नहीं? हाँ वही बोलते, मैं देखता हूँ फिर भी ना। कितने मतलब हो सकते हैं इसके मिसमाउन के? मिसमाउन क्या होता है? रेडियो, हाँ। हेयरिंग डिवाइस। जरूरी नहीं रेडियो, मतलब कोई सुनेगा फ़ोन से भी तब बनेगा फ़ोन मिसमाउंट। मतलब हेयरिंग डिवाइस लिखिए उसको आप, हेयरिंग डिवाइस। यानी कि ऐसा टूल जिससे हमें एनहेंस हो जाती है हेयरिंग, जो करते हैं एम्पलीफाइड साउंड को, हमें सुनाता है कोई चीज़। तो इसको आप लिखिए क्या? हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट या हेयरिंग डिवाइस, मिसमाउन या रेडियो। अब रही इसको आप करादा यकरिदु क्या होता है? काटना। करादा यकरिदु क्या जाएगा इसको? मिफ़अलुन के वजन पे, मिक़रद क्या जाएगा? मिक़रदुन। मिक़रद बोलते हैं किसको? एक मैं लिखूंगा मिक़रद इसको। मिक़रदुन इसको बोलते हैं। मिक़रद का मतलब होता है क्या? काटने की चीज़। काटने की चीज़ यानी कि सिजर। सिजर या शेयर। शेयर है, शेयर होता है ना। सिजर या शेयर इसने कहा है। करादा यकरिदु क्या होता है? काटना। यानी कि जैसे मिक़रद किसको बोलते हैं? मिक़रद कैंची को मिक़रद। ठीक है। या बोलते हैं उसको, जैसे इसको काटते काटते ना बेड को, जात काटते ना बेड को उससे ना, वैसे से होता है कुछ।
या काटते हैं पेड़ हम काटते हैं ना उससे, क्या बोलते हैं इसको, शेर बोलते हैं इसको, शेर। तो करदा यकरिदु क्या होता है, काटना। और मिकरज क्या होता है, मिकरज मिफअल के वजन पे, मिकरज या मिकराज, कैंची। या बोलते हैं कैंची को बोलते हैं मिकस, क्या बोलते हैं, मिकस। मिकस, कस या कुस हो गया काटना, फिर मिकस बन जाता है इसको, जैसे हदीस में आ गया कि वह कस शायरी भी, तुम मूंछों को कस करो, मिकस, यानी कि तुम कैंची से काटो मूंछों को। मूंछों को ज़्यादा सही है कि पूरा शेव। एक हदीस में वो भी आ गया शेव करने का हदीस, मतलब फुल मूंछों को शेव करना है। लेकिन अस्सी करना है काम, मूंछों को क्या करना है, पस करना है। पूरा वो अल्ट्रा शेव नहीं करना है, कर सकते लेकिन पूरा ना वो सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए, फुल सफ़ेद मूंछे, पूरा सफ़ेद। वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये फिकी मसले है। लेकिन हदीस में क्या क्या, वक़्स शारिबी, और यह कि तुम अपने मूंछ को पस्त करो, तुमको कैंची से काटो। वो तकलीमुल अज़फ़ार, तुम अपने जो है ये अज़फ़ार बोलते हैं, नेल्स को काट दो। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। एक मिनट, उसको पहले पेन को ही बंद करना है। उसके बाद अब है इसमें तफ़दील क्या है, लेकिन टाइम हो गया ख़त्म। हम देखिए अब एग्जाम्पल है बहुत सारी इसकी, किसकी, इसम आला की एग्जाम्पल्स। देखिए इसी इसमें एग्जाम्पल से जाती है। मिकनसा, कनसा यकनुसु मिकनसतुन, मिकनसतुन मिफ़अलतुन के वजन पे। मिकनसा बोलते हैं किसको, उसको ना झाड़ू को, ब्रूम को बोलते हैं। ऐसे कस या कुसुम मिकस, मिकस बोलते हैं कैंची को। मैं आपको सेंड करूंगा फिर ग्रुप में ये चीज़, या ऐसे आप लिखिए आप। अच्छा, ऐसे ही मिज, जहरा ये जहर होता है टू टू ऑब्जर्व। और मिजहर बोलते हैं माइक्रोस्कोप को जो ऑब्जर्व करते हैं, मिजहर। मिजहर मीन्स माइक्रोस्कोप, मिजहरुन। ऐसे ही होता है मिफ्रशुन, है ना, फराशा या फ्रोशो, मिफ्रशुन। मिफ्रश बोलते हैं किसको, फर्श को, कारपेट या रग को बोलते हैं मिफ्रश। इसको हम बिछाते हैं ना, वैसे ही। ऐसे ही ये हो गया, ये वाले औजान। और क्या होता, ये दुरुस्त पार्ट थी में लिखा है, मुझे किताब में आ गई दुरुस्त पार्ट थी, उसमें लिखे लगभग शायद 15-16 मिसालें लिखी है उस पर। और है कि मैसियात, जैसे हम बोलते हैं मिसबाहुन मिफ़आलुन के वजन पे। सबह क्या हो गया, टू एलुमिनेट। मिसबाह क्या होता है, लैम्प, मिसबाह। या जैसे हम बोलते हैं आ, म, इतना काफ़ी है ना फिर आज, इतना काफ़ी इंशाल्लाह है, टाइम हो गया। बाकी यहाँ पे खाली बोलता है सर्फ के बारे में, मतलब ये दिखाता है कि अरबी ज़बान में इस्म आला जो है वो बन जाता है किसी रूट वर्ड से ही बन जाता है, इसमें तफसील बन जाएगा अभी आगे चल के।